عمر بیل۔ اگلے چند دن بھی عمر اور علیزہ کے درمیان کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اپنے تحریری امتحان کے رزلٹ آنے کے بعد وہ اسلام آباد چلا گیا۔ وہاں سے اس کی واپسی 2 ہفتے کے بعد ہوئی۔ آپ نے ذوالقرنین کے سلسلے میں اس سے بات کی۔ رات کے کھانے پر ڈائننگ ٹیبل پر علیزہ سے اس کا سامنا ہوا۔ رسمی اسلام دعا کے بعد وہ سر جھکائے خاموشی سے کھانا کھاتی رہی اور پھر کھانے سے فارغ ہو کر سب سے پہلے ٹیبل سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد عمر نے نانا سے پوچھا۔ وہ اس سلسلے میں کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر اس نے دھمکی دی کہ اگر میں نے دوبارہ ذوالقرنین کے بارے میں کچھ کہا تو وہ خودکشی کر لے گی یا پھر گھر سے بھاگ جائے گی۔ میں تو خود خوفزدہ ہو گئی ہوں۔ علیزہ کبھی بھی اتنے باغیانہ انداز میں بات نہیں کرتی تھی مگر اب تو وہ بالکل بدل گئی ہے۔ اس کا دل چاہے کالج جاتی ہے، دل چاہے تو گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ 2 دن پہلے جا کر سارے بال کٹوا آئی۔ پچھلے 1 ہفتے میں 3 بار شہلا آ چکی ہے۔ اس سے بات کرنے کی بجائے اسے دیکھتے ہی کمرے میں چلی جاتی ہے۔ وہ دروازہ بجاتی رہتی ہے۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ روحان سی ہو کر واپس چلی گئی۔ باقی سب کچھ تو چھوڑ کر کرسٹی کی ساری چیزیں اٹھا کر کمرے سے باہر پھینک دیں۔ وہ آگے پیچھے پھرتی رہتی ہے مگر مجال ہے علیزہ اسے ہاتھ بھی لگائے۔ گھر میں ہو تو سارا دن بلند آواز میں اسٹیریو آن رکھتی ہے۔ پہلے کبھی اس نے یہ بھی نہیں کیا۔ دل چاہے تو کھانا کھائے گی ورنہ 2 چمچ لے کر اٹھ جاتی ہے اور اس سے بات کرو تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہی ہے کرنے دو، میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا۔ مگر اس طرح سب کچھ کتنے دن اور کیسے چلے گا؟ عمر خاموشی سے نانوں کی شکایتیں سنتا رہا جبکہ نانا بڑی بے نیازی سے کھانا کھانے میں مصروف رہے۔ گرینڈ پا نے ٹھیک کہا، وہ جو کر رہی ہے اسے کرنے دے، آہستہ آہستہ وہ خود ہی نارمل ہو جائے گی۔ عمر نے پانی پیتے ہوئے کہا۔ میں نے ان سے کہا اسے سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں، دوبارہ سے سیشن کروائیں، اس کا ڈپریشن تو کم ہو، مگر یہ اس پر بھی تیار نہیں۔ نانو کو ایک بار پھر سے شکایت ہو رہی تھی۔ میں اس کی مرضی کے بغیر اسے سائیکیٹرسٹ کے پاس کیسے لے جا سکتا ہوں؟ اور اس نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ وہ اب کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جائے گی کیونکہ وہ پاگل نہیں ہے اور میں اسے مجبور نہیں کر سکتا، نہ ہی کرنا چاہتا ہوں۔ نانا نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ میری بات کرنے کا نتیجہ تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں۔ مجھے تو پہلے ہی شرمندگی ہے، نہ میں ذوالقرنین سے بات کرتا اور نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ وہ خوش رہتی۔ عمر کو واقعی پچھتاوا ہوا تھا۔ پھر بھی تم اس سے بات کرو، اس طرح اس کو اکیلا تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ پرسوں سکندر کا فون آیا تھا، اس سے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ 7-8 دن پہلے ثمینہ کا فون آیا تھا، تب بھی اس نے یہی کیا۔ میں نے سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے صاف کہہ دیا، میرے کوئی ماں باپ نہیں ہیں، نہ ہی میں کسی سے فون پر بات کرنا چاہتی ہوں، مجھے کوئی ٹیلی فون کرنے والے رشتہ دار نہیں چاہیے۔ نانا نے رنجیدہ لہجے میں کہا، میں نے اتنے سال اس کی تربیت پر لگا دیے اور اب یہ سب کر رہی ہے، میری ساری محنت اس نے ضائع کر دی۔ گرینی، آپ نے اس کی تربیت نہیں کی، آپ نے اس کی شخصیت بننے ہی نہیں دی۔ نانا نے عمر کی بات کاٹ دی۔ میں نے اسے ہر چیز دی۔ تربیت سہولتوں اور چیزوں کو نہیں کہتے، اس نے مستحکم آواز میں کہا۔ آپ نے اس کو صرف پالا، پالنے میں اور تربیت کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ آپ نے اس کی تربیت کی ہوتی تو وہ ذوالقرنین کے ساتھ افیئر نہ چلاتی یا ایسی غلطی کر بھی لیتی تو اس طرح خودکشی کی کوشش نہ کرتی۔ میں نہیں مانتا کہ اس کو ذوالقرنین سے محبت ہوئی ہے۔ ذوالقرنین کی جگہ آج کوئی دوسرا بندہ آ کر وہی سب کچھ اس سے کہنا شروع کر دے جو ذوالقرنین کہتا تھا، وہ اس کے ساتھ بھی اسی طرح آنکھیں بند کر کے چل پڑے گی۔ اس کو جہاں سے توجہ اور محبت ملے گی وہ وہاں چلی جائے گی کیونکہ اس کو یہ چیزیں آپ سے یا اپنے پیرنٹس سے نہیں ملی ہیں۔ اس خاندان میں اور بھی تو بہت سے اس جیسے بچے ہیں جن کے پیرنٹس میں علیحدگی ہو چکی ہے، کسی نے بھی ویسے پرابلمس کھڑے نہیں کیے جیسے علیزہ نے کیے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ باقی سارے بچے علیحدگی کی صورت میں پیرنٹس میں سے کسی ایک کے پاس رہے ہیں اور دوسرے سے ملتے رہے ہیں۔ علیزہ کی طرح کسی کو نانوں کے پاس نہیں چھوڑا گیا۔ تم بھی تو ہو عمر، تم تو بورڈنگ میں رہے ہو، جنگی نے مستقل تمہیں اپنے پاس نہیں رکھا اور زارا سے بھی ملنے نہیں دیا، پھر بھی تم نے کسی کے لیے کوئی پرابلمس کھڑے نہیں کیے۔ عمر کے چہرے پر ایک طلب مسکراہٹ ہو گئی۔ میں کتنا نارمل ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں۔ مرد کی زندگی کا دائرہ عورت کی زندگی کے دائرے سے مختلف ہوتا ہے۔ میری ساری زندگی گھر کے باہر گزرتی ہے، میرے پاس بہت سی مصروفیات ہیں، بہت سی تفریحات ہیں، پھر ایک کیریئر ہے اور پھر میں
26 साल का हूँ। मुझे इस टीन एजर से तो कंपेयर नहीं कर सकते, जिसकी ज़िंदगी के दायरे में एक दोस्त, 2 ग्रैंड पेरेंट्स, एक बिल्ली और चंद ख्वाब हों। उसके पेरेंट्स की सेपरेशन की ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। अगर उसने कोई दुख उठाया है तो मेरी वजह से नहीं किया। मैं उसे जो दे सकती थी मैंने दिया। अब 24 घंटे तो मैं उसको गोद में लेकर नहीं बैठ सकती। और फिर अब वो बच्ची नहीं है, मैच्योर रही है। अपनी सिचुएशन और प्रॉब्लम्स को समझे, हालात के साथ एडजस्ट करना सीखे। तैराकी सिखाए बगैर आप किसी को इंग्लिश चैनल क्रॉस करने के लिए समंदर में धकेल देंगी तो उसके साथ वही होगा जो अलीज़े के साथ हो रहा है। उस पर तरस खाने के बजाय उसके साथ वक्त गुजारें। वो पास बैठने को तैयार हो तो ना, उमर खाना ख़त्म कर चुका था। मैं उससे बात करता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है उसको कुछ अरसे के लिए ले जाएं। कहाँ ले जाऊँ? कहीं भी, किसी हिल स्टेशन या उससे पूछ लें जहाँ वो जाना चाहे। वो टेबल से उठ गया। अलीज़ा के कमरे के दरवाजे पर नॉक करके वो जवाब का इंतज़ार किए बगैर अंदर दाखिल हो गया। वो अपनी रॉकिंग चेयर पे झूल रही थी। उमर को देखकर कुछ गड़बड़ाई। कैसी हो अलीज़ा? उमर ने बड़े दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। उसने झूलना बंद कर दिया। उसके चेहरे पर जवाबन कोई मुस्कुराहट नमूदार ना हुई। उसने उमर के सवाल का जवाब दिया। वो सिर्फ बेतासुर चेहरे के साथ उमर को देखती रही, जो इत्मीनान से उसकी कुर्सी के करीब बैठ गया था। आप मुझसे मेरा हाल पूछने नहीं आए, कुछ और पूछने आए हैं। तुमने ठीक कहा, मैं वाकई कुछ और पूछने आया हूँ। मैं जानती हूँ आप क्या पूछने आए हैं। उसने अपनी गोद में रखा हुआ हेयर बैंड अपने बालों में लगाते हुए कहा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, तो क्या पूछने आया हूँ मैं? उमर ने बड़े इत्मीनान से पूछा। आप मुझसे कहेंगे कि मैंने खुदकुशी की कोशिश क्यों की? नहीं, मैं ये पूछने नहीं आया। अलीज़ा की आंखों में बेयकीनी लहराई। फिर आप मुझसे ये कहने आए होंगे कि मैंने खुदकुशी की कोशिश करके अच्छा नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, मैं ये नहीं कहने आया। फिर नानू ने आपसे मेरे बारे में कुछ कहा होगा। आप मुझे समझाने आए होंगे कि मैं अपना रवैया ठीक कर लूँ। सॉरी अलीज़ा, तुम्हारा अंदाज़ा इस बात भी गलत है। मैं ये भी कहने नहीं आया। मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि तुम कब से मेरे कमरे से स्लीपिंग पिल्स लेती आ रही हो। उमर ने देखा कि अलीज़ा के चेहरे का रंग उड़ गया। और जाहिर है तुम मेरे सामान की अच्छी तरह जांच पड़ताल करती रही हो। अलीज़ा ने कुछ कहना चाहा। उमर ने उसे टोक दिया। नहीं, कम अज़ कम मेरे साथ झूठ नहीं। मैं जानता हूँ तुम मेरे कमरे में पिल्स लेती रही हो और तुमने मेरे कमरे से ही पिल्स लेकर खुदकुशी की कोशिश की। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ ठीक है, मैंने आपके कमरे से पिल्स ली, लेकिन मुझे ज़रूरत थी इसलिए ली। और इसमें बुरी बात क्या है? आप भी तो ये गोलियाँ खाते हैं। वो कुछ लम्हों के लिए कुछ बोल नहीं सका। तुम्हारी और मेरी उम्र में बड़ा फ़र्क है और मैंने उसे आदत नहीं बनाया। मगर आप लेते तो हैं ना? उसने अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए कहा। लेकिन मैं मरने के लिए नहीं लेता। इस बार वो चुप हो गई। जुल्करनैन ने घर जाकर एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा होगा और तुमने उसके लिए मरने की कोशिश की। अलीज़ा ने तेज़ आवाज़ में उसकी बात काट दी। आप उसके बारे में बात ना करें। क्यों? क्या अब तुम उससे नफ़रत करने लगी हो? उन्होंने जैसे मजाक उड़ाया। मगर तुम्हें उससे नफ़रत कभी नहीं हो सकती। तो फिर ठीक है, ग्रैंडपा कह रहे हैं ना कि तुम चाहो तो वो तुमसे उसकी शादी करवा देते हैं। फिर तुम उनका प्रपोज़ल कबूल कर लो। मुझे जुल्करनैन की ज़रूरत नहीं है। मुझे अब किसी की भी ज़रूरत नहीं है। मुझ में इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि जो शख्स मेरी इंसल्ट करे मैं उसे शादी ना करूं। और उसने मेरी इंसल्ट की है। उसकी आंखों में यकदम आंसू उमड़ आए। उसने चेहरा झुका लिया। तो फिर ऐसे शख्स के लिए इस तरह की हरकत करने की क्या ज़रूरत थी? उसने जवाब देने की बजाय अपना सर घुटनों में छुपा लिया। उमर ने अपना सवाल दोहराया। वो अब रो रही थी। लोग इतने झूठे होते हैं, इतने मक्कार होते हैं कि मैं तो उनके साथ नहीं रह सकती। लोग अपने चेहरे पर इतने मास्क चढ़ा कर फिरते हैं कि मैं तो किसी को पहचान ही नहीं सकती। हर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज़ों का भी। मैं तो लोगों को नहीं समझ सकती। उसने मुझसे बहुत दफ़ा मोहब्बत का इज़हार किया। उसने मुझसे बहुत दफ़ा कहा कि वो मुझसे शादी करेगा। और उस दिन आपके सामने उसने साफ इनकार कर दिया कि उसने ऐसा कहा ही नहीं। ना उसने मुझसे मोहब्बत का इज़हार किया, ना उसने मुझसे कभी शादी का वादा किया। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि वो मेरे साथ क्या कर रहा है। उसके लिए सब कुछ टाइम पास था, मगर मेरे लिए तो टाइम पास नहीं था। मैं तो अब किसी का सामना करने के काबिल नहीं रही। ना नाना का, ना नानों का, ना ही आपका। मेरे बारे में क्या सोचते होंगे सब?
कि मैं किस तरह की लड़की हूँ। मेरा दिल चाहता है दुनिया का एक दरवाज़ा हो जिससे मैं बाहर निकल जाऊँ। अगर अकेले रहना है तो फिर वहाँ जाकर रहूँ। और तुमने वो दरवाज़ा स्लीपिंग पिल्स खाकर ढूंढने की कोशिश की। लीज़ा ने एकदम सर उठाकर उमर को देखा। पता नहीं मैंने क्या किया। आप उस दिन की बात ना करें, आप कुछ भी ना कहें, मुझे बार बार सब कुछ याद दिलाएं। ठीक है, मैं कोई बात नहीं करता। हम सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ, जुल्करनैन को भी। अब तुम बताओ आगे क्या करना है। वही जो अब कर रही हूँ। तुम जानती हो तुम्हारी वजह से ग्रैनी और ग्रैंडपा कितने परेशान हैं। मेरी समझ में नहीं आता हर एक मेरी वजह से परेशान क्यों होता है। वो दोनों अपने बेटों और बेटियों की वजह से परेशान क्यों नहीं होते। जो कुछ आपके पापा ने किया उस पर वो परेशान क्यों नहीं होते। वो बात करते करते चुप हो गई। उमर का रंग एक लम्हे के लिए बदला, फिर वो उसी तरह उसे देखता रहा। कहती रहो, खामोश क्यों हो गई। उसने बड़े नॉर्मल अंदाज में उससे कहा। आप नाना और नानों से कहें मेरे बारे में परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, मैं कह दूँगा। क्रिस्टी को क्यों छोड़ दिया तुमने, और शैला से क्यों नहीं मिल रही। मुझे वो दोनों अच्छी नहीं लगती। फिर एक दूसरी बिल्ली और दूसरी फ्रेंड बना लो। अलीज़ा ने तीखी नज़रों से उसे देखा। जिस चीज़ से दिल भर जाए उसे रिप्लेस कर देना चाहिए। उमर ने बात जारी रखी। बिल्कुल वैसे ही जैसे जुल्करनैन ने मुझे रिप्लेस कर दिया। उमर चुप हो गया। मैं जुल्करनैन की बात नहीं कर रहा। कुछ देर बाद उसने कहा, आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को रिप्लेस करते हैं। वो उसी तरह सर उठाकर उससे पूछ रही थी। नहीं, मैं नहीं कर पाता, उमर ने इतराफ़ किया, मगर मैं सीख जाऊंगा। जिस प्रोफेशन में जा रहा हूँ वो प्रोफेशन मुझे सब कुछ सिखा देगा, मगर मैं कभी किसी चीज़ को रिप्लेस करना नहीं सीख सकती। फिर ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल है। वो अजीब से अंदाज में हंसी। मैं चाहता हूँ अलीज़ा, तुम खुद को इस तरह ज़ाया मत करो। मैं चाहता हूँ तुम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारो। उसने बड़ी संजीदगी से अलीज़ा का हाथ पकड़ लिया। आप ऐसा क्यों चाहते हैं। पता नहीं, मगर मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकता। आप वाकई परवाह करते हैं मेरी, अलीज़ा ने पूछा। क्या तुम्हें अब भी मुझसे ये पूछने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल था तुम ये जानती होगी। मैं कुछ नहीं जानती। मैंने आपसे कहा ना, मैं लोगों को नहीं समझ सकती, उसने मायूसी से सर हिलाते हुए कहा। मुझे इन लोगों में शामिल मत करो। तुम्हें मुझ पर एतमाद होना चाहिए। अलीज़ा सिकंदर को उमर जहांगीर कभी धोखा नहीं दे सकता। अलीज़ा बहुत गौर से उसका चेहरा देखती रही। वो अब भी उसी तरह उसका हाथ अपने हाथों में लिए हुए था। क्या आप मुझसे शादी करेंगे, उसने सर उठाकर उमर से पूछा। हेलो, मैं उमर बोल रहा हूँ। हेलो उमर, कहाँ थे तुम। सुबह से कितनी बार कॉल कर चुका हूँ, मगर तुमने मोबाइल ऑफ किया हुआ था। हो क्या गया है तुम्हें। कहाँ हो तुम, अयाज हैदर ने दूसरी तरफ से कहा। यहीं हूँ मैं, लाहौर में। ग्रैनी ने बताया कि आप मुझसे बात करना चाह रहे थे। किस सिलसिले में बात करना चाहते हैं मुझसे। तुमने आज के न्यूज़पेपर्स देखे हैं। देख चुका हूँ, उमर ने उसी बेतासुर अंदाज में कहा। अपने बारे में खबर देखी है। हाँ, मैं उसी सिलसिले में तुमसे बात करना चाह रहा था। क्या बात करना चाहते हैं आप मुझसे। हमदर्दी करना चाहते हैं। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि कुछ दिनों तक तुम्हें सस्पेंड करके तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी शुरू होने वाली है। अयाज हैदर ने जैसे इंकशाफ किया। थैंक यू। और कुछ, तुम यहाँ इस्लामाबाद आ जाओ। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे जो कुछ करना है मैं यहीं रहकर करूँगा। क्या करोगे तुम। वही जो पापा ने किया। उन्होंने प्रेस में ये सब कुछ मेरे खिलाफ शाया करवा दिया। मैं भी उनके खिलाफ प्रेस को वो सारे पेपर्स दूंगा जो मेरे पास हैं। बेवकूफ़ी मत करो। मैं जहांगीर से बात कर चुका हूँ। प्रेस ने तुम्हारे और चंद दूसरे ऑफिसर्स के बारे में जो कुछ शाया किया है उसमें जहांगीर का हाथ नहीं है। वो तो खुद न्यूज़पेपर देखकर हैरान हुआ है। उसने मुझे बताया है कि वो तुम्हें पहले ही खबरदार कर चुका था कि तुम अगर उस प्रपोज़ल को रिजेक्ट करोगे तो तुम्हारे लिए सर्विस में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं सब कुछ जानता हूँ, कौन क्या कर रहा है और क्यों करवा रहा है। आप सिर्फ पापा को ये इतला दे दें कि वो कल के न्यूज़पेपर भी ज़रूर पढ़ें। उन्हें खबरों में रहने की खासी आदत है। कल उनके बारे में भी कुछ खबरें लगेंगी। हो सकता है काफ़ी पसंद आए उन्हें। उमर का लहजा तल्ख था। उमर, तुम कुछ नहीं करोगे। यार क्या हो गया है तुम्हें। यहाँ इस्लामाबाद में तुम्हारी और जहांगीर की बात करवाता हूँ। कोई हल सोचते हैं, अयाज हैदर ने मसालेहाना अंदाज में भतीजे से कहा। मैं अब उनसे कोई बात नहीं करना चाहता। अब बातों का वक्त रहा ही नहीं। वो मेरे लिए हर रास्ता बंद करते जा रहे हैं।
اس میں جہانگیر کا کیا قصور ہے؟ تم نے امریکہ میں جو کچھ کیا، ایجنسیز کے آدمیوں نے اس کے بارے میں گورنمنٹ کو رپورٹ کر دی۔ اب اگر اس رپورٹ میں سے کچھ ایکسرپٹس پریس کے ہاتھ لگ گئے اور پریس نے شائع کر دیے تو اس میں جہانگیر کی انوالومنٹ کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ اور انکوائری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بھی پریس نے شروع کروائی ہے۔ عمر، تمہارے خلاف بہت سیریس اوفینس بنتا ہے، ٹریزن کیس ہے۔ اب ظاہر ہے ایسی رپورٹس پر گورنمنٹ انکوائری تو کروائے گی۔ میں نے امریکہ میں جو کچھ کیا پاپا کے لیے کیا اور پاپا کے کہنے پر کیا۔ ٹریزن کیس پاپا کے خلاف بننا چاہیے، یہ انکوائری بھی ان کے خلاف شروع ہونی چاہیے۔ ایجنسیز کے لوگ اتنے ہوشیار ہیں کہ مجھے انہوں نے فوراً ٹریس آؤٹ کر لیا، اور پاپا کے بارے میں وہ ایک لفظ تک رپورٹ نہیں کر سکے، اور اس ملک میں پریس تک سرکاری افسروں کے بارے میں وہی کچھ آتا ہے جو گورنمنٹ پہنچانا چاہتی ہے، ورنہ کم از کم ایجنسیز کی رپورٹس اس طرح لیک آؤٹ نہیں ہوتی۔ عمر کا اشتعال بڑھتا جا رہا تھا۔ دیکھو عمر نے ایاز حیدر کی بات کاٹ دی۔ میں نے اگر ایمبیسی میں فائلز اور رپورٹس کا کاپیز کسی کو پہنچائی ہیں تو پاپا کے کہنے پر کی ہیں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس موجود فائلز کسی کو دینے کے لیے کہے، اور وہ باس آپ کا باپ بھی ہو جس نے سارے رولز اور ریگولیشنز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو وہاں پوسٹ ہی اس لیے کروایا ہو؟ عمر، موبائل پر اس طرح کی بات مت کرو، ہو سکتا ہے کہیں یہ سب سنا جا رہا ہو۔ ایاز حیدر نے اسے ٹوکا۔ آئی ڈونٹ کیئر، وہ میرا سروس ریکارڈ خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور میں ان کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ کہوں۔ پہلے بھی انہوں نے مجھے استعمال کیا اور اب بھی وہ یہی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تمہیں خواہ مخواہ غلط فہمی ہو گئی ہے۔ وہ تمہیں کیوں استعمال کرے گا؟ وہ مجھے استعمال کر رہے ہیں کہ اب گورنمنٹ جانے والی ہے، اور انہوں نے اس سیاستدان کو میرے بارے میں کچھ بھی شائع کرنے سے نہیں روکا، کیونکہ جب چند ماہ گورنمنٹ جائے گی تو وہ عبوری حکومت میں میرے کیس کو استعمال کر کے فائدہ اٹھائیں گے، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ وہ ان کا بیٹا ان بیوروکریٹس میں سے ہے جو اس حکومت کے زیر الطاف ہیں۔ بعد میں اگلی گورنمنٹ سے وہ پھر اچھی پوسٹنگ لے لیں گے، مگر میرا سروس ریکارڈ تو خراب ہو جائے گا۔ عمر، جہانگیر ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ اس بار ایاز کا لہجہ پہلے سے محتاط تھا۔ اوہ ریئلی؟ تو پھر ان سے کہیں کہ میں اب منسٹر کی بیٹی سے شادی پر تیار ہوں، وہ جب چاہیں میری شادی کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف سے ایاز حیدر نے ایک گہری سانس لی۔ آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ عمر نے تنزیہ انداز میں کہا۔ تم احمقانہ بات کر رہے ہو، اور احمقانہ باتوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ انکل، میں کوئی بچہ نہیں ہوں کہ ایسی چالوں کو نہ سمجھوں۔ پاپا سے کہیں آپ جوڑیں رشتہ دار منسٹری سے۔ اب اور کسی قیمت پر میری شادی اس شخص کی بیٹی سے نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ چند ماہ تک گورنمنٹ چلی جائے گی اور اگلی گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹ کے تمام رشتہ دار بیوروکریٹس پر انکوائری لائے گی اور ایس ٹی بنا دے گی، یا پھر وہ پوسٹنگز دے گی جو بیکار ہیں۔ تم امکانات کی بات کر رہے ہو۔ ایاز حیدر کا لہجہ بہت ٹھنڈا تھا۔ میں حقائق کی بات کر رہا ہوں۔ اگر یہ امکان ہے تو پاپا اسلام آباد میں جم کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگلی پوسٹنگ لینے سے کیوں ہچکچا رہے ہیں؟ میڈیکل لیو کو کیوں بڑھا دیا ہے انہوں نے، جبکہ وہ بالکل ٹھیک ہیں؟ اور آپ انگلینڈ سے اسلام آباد کیوں آ گئے ہیں؟ عمر، میں تمہارے اور جہانگیر کے مسئلے کو حل کروانا چاہتا ہوں۔ میں واقعی ایسا چاہتا ہوں۔ تم یہاں آؤ، آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ایاز حیدر نے بہت پرسکون انداز میں بات کا موضوع تبدیل کر دیا۔ نہیں، میں نے اب کوئی آمنا سامنا نہیں کرنا۔ اگر وہ سب کچھ پریس میں لے گئے ہیں تو میں بھی سب کچھ پریس میں لے جاؤں گا، اور میرے پاس ان کے بارے میں جو کچھ ہے وہ ایک بار پریس میں آ گیا تو کوئی گورنمنٹ بھی انہیں سروس میں نہیں رکھ سکے گی۔ وہ اپنی باقی کی زندگی جیل میں گزاریں گے یا کسی دوسرے ملک میں فرار ہو کر۔ تم جانتے ہو اس سے کیا ہوگا؟ تمہاری پوری فیملی سفر کرے گی، ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی، ہماری جہانگیر کا کیریئر ختم ہوگا تو تمہارا بھی ختم ہو جائے گا۔ ایاز حیدر پہلی بار بلند آواز میں بولے۔ مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، نہ فیملی کی، نہ اپنے کیریئر کی۔ اگر کچھ ختم ہو رہا ہے تو ختم ہو جائے، بلکہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ عمر، تم جذباتی ہو رہے ہو، ذرا ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچو۔ اگر پریس میں تمہارے بارے میں کچھ بھی آ جائے گا تو اس کو کور اپ کیا جا سکتا ہے۔ تم اکیلے آفیسر نہیں ہو، اور بھی آفیسرز کا نام آیا ہے، ان کی فیملیز بھی ہاتھ پاؤں ماریں گی۔ ہم کسی نہ کسی طرح انکوائری کو ڈیلے کروا لیں گے۔ چند ماہ تک ویسے ہی سیاسی سیٹ اپ تبدیل ہونے والا ہے۔
एक बार वो मिनिस्टर वहाँ से हट गया तो कौन दोबारा इंक्वायरी शुरू करवाएगा? फिर अगर उसने जल्दी इंक्वायरी करवाना भी चाही तो हम देख लेंगे कि इंक्वायरी बोर्ड में से कौन से मेंबर्स हैं, उनके साथ डील की जा सकती है। लेकिन मेरे सर्विस रिकॉर्ड में ये सब कुछ आ जाएगा, उसके बारे में भी कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो फिर ठीक है, जब पापा के बारे में प्रेस कुछ शाया करे तो आप बिल्कुल इसी तरह से सारे मामले को हैंडल करें जिस तरह आप मेरे मामले को हैंडल करने का कह रहे हैं। वो अभी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। उन्होंने मेरे साथ जो किया मैं भी उनके साथ वही करूँगा। कम से कम अब वो मुझे इस्तेमाल करके कोई फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। मैंने तुम्हें बताया है कि जहांगीर ने ये सब नहीं करवाया, मगर उन्होंने ये सब होने से रोका भी नहीं। अंकल, आप अपने बेटे के खिलाफ ऐसी कोई रिपोर्ट प्रेस तक आने देते? ख़ास तौर पर तब जब वो आपके कहने पर ही सब कुछ करता रहा हो। अयाज हैदर उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दे सके। कोई अपने घर के कुत्ते के साथ भी वो नहीं करता जो मेरे बाप ने मेरे साथ किया है। मुझे पूरी तरह दलदल में फंसा दिया है। मेरे बारे में जो इल्ज़ामात आए हैं उनके बाद मैं तो किसी को मुंह भी नहीं दिखा सकता। मैं सिर्फ उस गंदगी की वजह से फॉरेन सर्विस छोड़कर आया था कि ना मैं वहाँ हूँगा ना मुझे इस तरह के काम करने पड़ेंगे, और पापा मुझे यहाँ भी रहने नहीं दे रहे। अगर वो रिपोर्ट उस शख्स ने प्रेस तक पहुँचाई है तब भी क्यों नहीं उन्होंने रोका उसे? मगर जहाँ जहांगीर मास की अपनी ज़ात आ जाए वहाँ तो उन्हें और कुछ ही नज़र नहीं आता। हालांकि अपनी औलाद भी अगर ये मेरे साथ ये सब कुछ करेंगे तो फिर मैं भी उनका लिहाज नहीं करूँगा। इनफ इज़ इनफ, नाउ आई विल पे हिम इन द सेम कॉइन। उसने फ़ोन बंद कर दिया। अयाज हैदर ने परेशानी के आलम में उसका नंबर दोबारा मिलाना शुरू किया। मोबाइल ऑफ कर दिया गया था। एक गहरी सांस लेकर उन्होंने जहांगीर मास का नंबर मिलाना शुरू कर दिया। पता नहीं अयाज को क्या बात करनी है उमर से। कह रहा था मुझे फ़ोन करके बता देगा, मगर अभी तक फ़ोन भी नहीं किया उसने। लंच करते हुए नानो मुसलसल उमर के बारे में परेशान हो रही थी। अलीज़ा उनकी बड़बड़ाहट सुनते हुए खामोशी से खाना खा रही थी। तुम ज़रा फ़ोन करो उमर को, बिलाकर नानो ने उससे कहा। फ़ोन करने से क्या होगा? मैं बात तो करूँ ना, उससे पता तो चले कि अयाज को उससे क्या बात करनी थी। नानो, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अंकल ने काम के हवाले से कोई बात करनी होगी। हमें बताने वाली बात होती तो अंकल आपको बता देते, या फिर उमर ही आपको बता देता। अलीज़ा अब भी मुतमईन थी। नहीं, कोई ना कोई बात ज़रूर है, मुझे लगता है उसका फिर जहांगीर के साथ कोई झगड़ा हो गया है, वो कुछ कह रहा था। तो ये कौन सी नई बात है? चंद माह पहले भी तो यही झगड़ा हुआ था। अंकल जहांगीर और उसके दरमियान तो हमेशा ही झगड़े होते रहते हैं। अलीज़ा ने नाना को मुतमईन करने की कोशिश की। फिर भी कुछ पता तो चलना चाहिए। तुम उमर को फ़ोन करो, उन्होंने इसरार किया। खाना तो खा लेने दें, फिर कर देती हूँ। अलीज़ा को उनके इसरार से कुछ उलझन हुई। खाना खाने के बाद अलीज़ा ने उमर के मोबाइल का नंबर डायल किया। मोबाइल ऑफ है, उसने नानो को इतला दी। तुम होटल में फ़ोन करो, नानो ने हदायत दी। अलीज़ा ने होटल का नंबर डायल किया। कुछ वक्त के बाद होटल की एक्सटेंशन के थ्रू उमर से उनका राब्ता हो गया। नानो आपसे बात करना चाह रही हैं। उसने उमर की आवाज़ सुनते ही रिसीवर नानो को थमा दिया। हेलो ग्रैनी, अब क्या मसला है? वो उकताया हुआ लगा। तुमने मुझे दोबारा फ़ोन नहीं किया। अयाज से बात हो गई तुम्हारी? हाँ, हो गई। क्या कहा उसने? आपने आज का न्यूज़पेपर देखा? उमर ने जवाबन सवाल पूछा। हाँ, देखा है। फिर भी आप पूछ रही हैं, क्या मतलब? फॉरेन सर्विस के कुछ ऑफिसर्स के बारे में फ्रंट पेज पर एक हेडलाइन है, उसे ज़रा गौर से पढ़ लें। उसमें मेरा नाम नहीं दिया गया, मगर मेरे ओहदे और पोस्टिंग के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। अंकल अयाज उस सिलसिले में बात करना चाह रहे थे। मेरे खिलाफ इंक्वायरी होने वाली है। चंद दिनों तक मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसने एक गहरी सांस लेकर बताया। नानो एकदम परेशान हो गई। फिर क्या होगा? तुमने आखिर ऐसा क्या किया है कि वो तुम्हें सस्पेंड कर रहे हैं? ग्रैनी, इस वक्त मुझसे कुछ ना पूछें। मैं रात को आपकी तरफ आऊँगा, खाना आपके साथ खाऊँगा, तब आपको सब कुछ बता दूँगा। ठीक है, मैं रात को तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। उमर ने खुदाफिज कहकर फ़ोन रख दिया। उमर को मुअत्तल कर रहे हैं? रीज़ा ने नानो के फ़ोन रखते ही उनसे पूछा। हाँ, तुम ज़रा आज का न्यूज़पेपर लाओ। नानो बेहद फ़िक्रमंद नजर आने लगी थी। अलीज़ा अखबार लेकर उनके पास आ गई। वो भी एकदम संजीदा नजर आने लगी थी। नानो ने अखबार अपने सामने फैला लिया। अलीज़ा ने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। खासी देर बाद उन्होंने सर उठाया। न्यूज़पेपर्स में उमर के बारे में कोई खबर है?